Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good morning, everyone, and very warm welcome to this Ultimatics Payroll and HRMA series. Let's just give all the attendees a 5-minute time so that they just get settled down as all the attendees are joining. Post that, we'll start this session within 2 or 3 minutes. Let's just give attendees all the settling time. Please bear with us. Thank you. Hello, everyone. We'll start this session within 2 minutes.
ત્રણ પેજ છે હવે હું શું કરું? Hello everyone, and very warm welcome to Ultimatics Payroll and HRMS series. I hope that everyone is safe with their families in this global fight against the COVID-19. We as a team always show the gratitude towards the brave man and woman who work as a frontliner today itself. Myself, Sonia Lalwani, and I'm working with Orange Technolab Private Limited since 1.5 years. I just want to just give you the brief about Orange Technolabs. Private Limited is in IT segment since 18 years, and our major domain expertise is into the payroll and HRMS solution. Orange is serving in 32 countries like UAE, Kenya, UK, Singapore, Malaysia, Uganda, and many more across the globe. I would also like to draw your attention that our company is ISO 9001:2015 certified as per the quality perspective, and in next few couple of months, Chetan, am I audible to you? Yes, you can continue. Okay, yeah, thank you. So I was just telling that we are ISO 9001:2015 certified as per the quality perspective, and in next couple of months, the company would be ISO 27001:2013 certified with the data security aspects. Furthermore to this, Orange also has a vision to be CNMI certified in coming years. And it is my pleasure to welcome all you back once again to this series. Our today's topic is purely based on offboarding. So let's jump before jumping on the agenda of this offboarding. I just want to share you some quick tips. For the persons who have started their companies, and please follow the guidelines which are suggested by WHO, like be a home quarantine if you think that you are infected by the COVID-19 or coronavirus. Please keep the physical distance at least of 2 meters. Avoid crowd in the office as you think there is a lot of people in the group. Please avoid that crowd. Use face mask and use hand gloves. Wash your hands frequently. It is suggested that at least wash your hands in 20 minutes regularly. Build the immunity. Eat the chamanprash as WHO has suggested. And if you are infected and if you think there is a fever, so please make yourself home quarantine and work from home, or work from anywhere, so that anybody else is not infected with this dangerous virus. So these are the quick tips which you can follow when you are in the office or at the home. Then one more thing is that post COVID-19, as all of the people were working from home, and this is this suggestion from Orange that everyone should plan the action. That one thing you should stop doing by today, or one thing you should start doing by today. That main important thing which you were lacking and which you were not able to start, please start it from today. It can be anything. It can be professional. It can be from a social perspective. So you can start it from today. And the thing which you were not able to continue, your passion or your dream, so you can continue that thing by today. Or you can start this thing, passion or dream, achieving by today itself. And one more thing is there, that always improve yourself, always enhance yourself, always enhance your skills. That because these are the only things which you will have in your whole life. So these were the principles based on that OZ, which you have, I think, learned from various training sessions, or you may have gone through in the HR books. So these were the quick tips from Orange Technolab that you should do, and you should prepare the plan of action. So let's jump on the offboarding topic which we have today.
And there are many people who in HR who think that offboarding is a very crucial topic, or you can say a very important thing. When employee leaves, it's an opportunity to find out what went wrong and what can be enhanced in the workplace. Employees' reasons for leaving are normally just a complex thing. They are multifaceted reasons. You cannot find the actual exact reason. So it's the common for team leads and executives to find or to make the wrong assumptions about why the staff turnover is occurring within the organization. And still, you can say offboarding is the most prominent challenge faced by as an HR. So for I'm so sorry. For that, Orange Technolab has prepared the quick tips that you should follow while offboarding. So let's just assume that it's the time to offboard an employee. A resignation letter is placed on your desk, and the employee tells you that you are moving on. They are moving on. Okay. So at that time, what generally HR thinks that, okay, now what? How the work will go on? Who will be the successor? How we can carry on the pending task? So at that time, Orange suggests you that don't be panic at that time. There is no need to go into the damage control, and hopefully I think HRs have already got a successor in the mind for the existing employees role, so there is no need to panic. All you have to go to is to make sure that outplacement is managed legally, fairly, and properly. For that, Orange has prepared a 10-step employee offboarding checklist, which you can use to get through the process stress-free. So the first step is to communicate the departure. Communicate the departure. There are a lot of people who think that the departure of employee in the department should not be disclosed. It should not be disclosed. So the first step is to don't delay in letting the team know the employee is moving on. You don't cross communicate with all the departments that this so and so person is doing the exit or is leaving the job, and we are hiring one other person. So to avoid these rumors and avoid these gossips, we should communicate the departure of employee very fast. So if you had a successor plan, this step should be relatively very easy. The third quick tip is recover company asset. Surprisingly, many organizations fail to recover the company asset like mobile phone, laptop, and equipment from the employees. So it is very much important stage to please recover all these company's asset as soon as possible, as you just know that the employee is on the resignation period. So try to just recover all these assets from them immediately within that relieving period or resignation period. The fourth quick tip is update your organization chart and company directory. As soon as the company has accepted the resignation of employee, it is the very first duty of HR to update the organization chart so that the successor or the other employees didn't miscommunicate the designation or the ex-employee's name for further communications. The fifth quick tip is revoke system access. Now, this is very crucial. Remember that any shared account, which is the shared password, single user internal system, and so on, will also need to have their password updated to prevent the breaches. Because what happens now, if employee leaves the company and again from after a couple of months he tries to log in to his portal or tries to log into email IDs, so it is very risky for us because there is a chance of data hacking, or you can say a data theft. To avoid these breaches, we should update the passwords as soon as possible, or we can revoke the system immediately. The next quick tip is complete final pay process. As we all know that payroll systems have the functionality inbuilt, but it is important to make sure the final pay process is actually carried out by the people. The seventh quick tip is perform an exit survey and interview. This is very, very, very crucial point, because by taking the exit survey or by taking the exit interview, you can get the effectiveness of exit survey
and you can get some good insights into what does and what doesn't work in your organization. So it's very, very, very beneficial to take the exit survey or exit interview. The next quick tip is provide letters of reference and exiting document. Your exiting employee may want a letter of reference, at a very least a certificate of service as evidence for for the employment or of their employment to show to some other employer. So this is the very quick tip, that please release those documents or release those service certificate to employee as soon as possible. The second last quick tip is thank the exiting employee, particularly if the employee is, leaving on the good terms, and make sure they feel appreciated, because obviously they had provided the good contribution in the company. So the good tip is to thank the existing employee. Then the last tip is engage the former employee in an alumni group if it is possible. Former employees are becoming more likely, you can say a boomerang, because as they leave the company later on, on their careers, bringing with them added experience and knowledge in the connection when they are coming back into the company. So yeah, you can, share their experience or share their names in the alumni group to appreciate them and to appreciate their contribution in the company so far. So these were the 10 quick tips which Orange actually wanted to give all the HRs and all the recruiters who are onboarding and offboarding processes and who are doing all these activities day in and day out. So these were the quick tips. So let's just move on to today's session and agenda. So in today's session, joining with us Mr. Umang Patel, Mr. Sachit, and Mr. Chintan are there. So let's just quickly have a glimpse of today's session. We will quickly touch base on the offboarding module, what kind of exit module we have and FNF module we have with us, and you will see the some good benefits of using this exit module and FNF module, and you can improve the ROI of the company by taking the exit survey or exit interview. So how to take those surveys, you will see also see those topics in this session. Post this session, we will have a quick answer session in which you have to raise the question and we'll provide you the answer. Between that, we'll have a poll related to today's session. So just before handing over the session to Mr. Umar, I just want to request all the attendees to please share your questions and comments on this question box. We are ready to provide the answers in today's session at the end. So it's a pleasure to invite all the panelists in today's session. So I request Mr. Umang to please take the charge and start the session. Over to you, Umang. Okay, madam. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एग्जिट मॉड्यूल का प्रोसेस कैसे होता है पेरो सॉफ्टवेयर में वो मैं बताने जा रहा हूँ। टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे कि पहले एग्जिट का जो सेटिंग होता है हमारे में एडमिन सेटिंग में एग्जिट क्लियरेंस रिक्वायर्ड सेटिंग है, एग्जिट क्लियरेंस डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर डिटेल्स है। फिर सेकंड है एग्जिट क्लियरेंस एट्यूडेट मास्टर, हमारे में एट्यूडेट मास्टर क्रिएट करना पड़ता है। फिर कैसे पैनल में ऐड करते हैं, फिर उसका रेटिंग क्या होता है, उसका क्वेश्चन मास्टर में कैसे ऐड करते हैं, फिर स्कीम कैसी बनाई जाती है एग्जिट की, उसको रिपोर्टिंग मैनेजर वाइज असाइन कैसे कर सकता है। फिर अलाउंस बनाना है, FNF रिकवरी अलाउंस ऐड, फिर असाइन करना है एम्प्लॉय को एग्जिट एप्लीकेशन में, एम्प्लॉय कैसे एग्जिट एप्लीकेशन करता है, फिर मैनेजर के पास ईमेल या नोटिफिकेशन जाने के बाद कैसे अप्रूवल करता है मैनेजर। फिर होता है एग्जिट क्लियरेंस, फिर होम पेज पे NOC गिवन आता है, फाइनल क्लियरेंस अप्रूवल मैनेजर करता है। फिर लास्ट में एग्जिट इंटरव्यू होता है, जैसे कि मल्टीपल एम्प्लॉय इंटरव्यू शेड्यूल डेट सेट होता है। फिर होता है ऑटो असाइन क्वेश्चन एज पर डेजिग्नेशन वाइज होता है, मैनुअल असाइन क्वेश्चन एज पर डिफाइंड क्वेश्चन एनालिसिस मास्टर होता है। फिर ESS साइड होम पेज वर्क पे
पॉपअप मैसेज आता है नोटिफिकेशन पे, उस पे आप इंटरव्यू शेड्यूल फीडबैक लिंक ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाती है। फिर होता है एग्जिट इंटरव्यू कैसे होता है, फिर एम्प्लॉय ने एप्लीकेशन किया है वो फीडबैक फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फिर हमारे में ग्राफिकल एग्जिट एनालिसिस करते पता चलता है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, एफ डिडक्शन रिपोर्ट, एग्जिट क्लियरेंस लेटर है, एग्जिट इंटरव्यू का लेटर है। फर्स्ट पर एप्लीकेशन एडमिन सेटिंग में जनरल सेटिंग में जाने के बाद इन जनरल टैब सिलेक्ट अदर सेटिंग में 3 सेटिंग दिया गया है। उसमें फर्स्ट है एग्जिट क्लियरेंस रिक्वायर, सेकंड है इनेबल एग्जिट क्लियरेंस सेंटर वाइज, थर्ड है रिमाइंडर डेज फॉर एग्जिट क्लियरेंस फॉर कॉस्ट सेंटर वाइज। फिर द सेटिंग यूज्ड वेयर यूज्ड वांट टू send exit clearance reminder email before exit application employee lab days। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंट्रोल पैनल में एडमिन सेटिंग में जाने के बाद जनरल पे क्लिक करने के बाद एग्जिट का 3 सेटिंग दिया गया है। उसमें फर्स्ट है एग्जिट क्लियरेंस रिक्वायर्ड, उसका मीनिंग है टर्न दिस फीचर ऑन द फोकस यूजर गिव अ रीजन ऑफ एग्जिट क्लियरेंस। अब तो एग्जिट क्लियरेंस रिक्वायर है तो आप ऑन करना है, आपको एग्जिट क्लियरेंस रिक्वायर नहीं है तो इस दिस बटन को आपको ऑफ रखना है। बाद में है इनेबल एग्जिट क्लियरेंस प्रोसेस को सेंटर वाइज। फिर है रिमाइंडर डेज, जैसे कैसे के लिए एग्जिट क्लियरेंस को सेंटर वाइज के लिए एम्प्लॉय ने एप्लीकेशन किया फिर क्लियरेंस कितने दिन बाद एम्प्लॉय को रिमाइंडर देता है। बाद में है एग्जिट क्लियरेंस सब डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर डिटेल्स। एडमिन सेटिंग में जनरल में आपको सब सेटिंग सेट करने के बाद मैनेजर में उसका मैनेजर डिफाइन करना पड़ता है एग्जिट क्लियरेंस। दिस एम्प्लॉय अप्रूवल एग्जिट क्लियरेंस असाइन सब डिपार्टमेंट वाइज आप कर सकते हो। बाद में है शेड्यूल मास्टर। हमारे में कंट्रोल पैनल में एडमिन सेटिंग में एसक्यूएल जॉब का है। आप एसक्यूएल जॉब से एग्जिट क्लियरेंस रिमाइंडर विद ईमेल एग्जिट क्लियरेंस मैनेजर के पास उसका ईमेल फायर होगा, वो आप सेट कर सकते हो एग्जिट क्लियरेंस रिमाइंडर। फिर एग्जिट क्लियरेंस एट्रीब्यूट मास्टर, जैसे के लिए एक्चुअली एग्जिट क्लियरेंस एट्रीब्यूट डिटेल्स आपको ऐड करना है इन द एड सब डिपार्टमेंट वाइज एग्जिट एट्रीब्यूट डिटेल्स होता है एग्जिट मास्टर में जाके जॉब एग्जिट मास्टर में एट्रीब्यूट मास्टर है। आप एग्जिट एप्लीकेशन करने के बाद एक्सेस कौन सा मास्टर क्रिएट करना है वो दिखाएगा। जैसे के लिए एग्जिट क्लियरेंस इन द पर्टिकुलर सब डिपार्टमेंट वाइज एट द एट्रीब्यूट डिटेल्स। आप एक एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने के बाद मल्टीपल सब डिपार्टमेंट को आप असाइन कर सकते हो। जैसे के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, फाइनेंस, एचआर डिपार्टमेंट। ये एक डिपार्टमेंट मैंने क्रिएट किया है सब डिपार्टमेंट, उसका एट्रीब्यूट नेम एक ही मैं रखता हूँ एक्सेस कंप्यूटर फोल्डर, वो सभी डिपार्टमेंट में असाइन कर सकते हो। फिर है रेटिंग क्वेश्चन मास्टर, कैसे आप एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करना है आपकी कंपनी के लिए, कौन सा रेटिंग है, कौन सा ग्रुप बनाना है, कौन सा क्वेश्चन होता है। जैसे के लिए मैं बताऊं मास्टर एग्जिट एनालिसिस क्वेश्चन है रेटिंग में है। रेटिंग रेटिंग का मीनिंग है जैसे कि इन मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, जॉब वाज चैलेंजिंग, आंसर इज एग्री या डिसएग्री। तो आपको यहाँ से वो रेटिंग ऐड करने के बाद आपको टाइटल में एग्री, डिस्क्रिप्शन में एग्री, रेटिंग में 2, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है रेटिंग, ग्रुप और क्वेश्चन। टाइटल में एग्री, बेनिफिट, कैरियर एडवांस, कैरियर चेंज, डिसएग्री, जैसे के लिए आप बना सकते हो। फिर आता है रेटिंग के बाद ग्रुप डिटेल्स। ग्रुप में आप ग्रुप यूजर कैन क्रिएट ग्रुपिंग क्वेश्चन, एग्जांपल द मैनेजमेंट, इन मैनेजमेंट सो मेनी क्वेश्चन आर देयर, that time user can create a one group question like group name the job, sorting number 1 is active but tick one. In group by question is a rating is fixed for all question is group, like हमने पहले जब रेटिंग क्रिएट कर दिया था उसका ग्रुप एक बनाना है जस्ट ग्रुप, स्टोरिंग एग्री, नेशनल, डिसएग्री। ये जो हमने जो ग्रुप बनाया है द जॉब नाम में, द जॉब नाम का हमने जो ग्रुप बनाया है उसका क्वेश्चन ये आता है जैसे के लिए ग्रुप
नॉन स्टाफ है, द मैनेजमेंट है, द डिपार्टमेंट है, द जॉब, हमने ग्रुप वाइज वो क्वेश्चन आप असाइन कर सकते हो। फिर है क्वेश्चन डिटेल्स, आपकी कौन सी क्वेश्चन आपको एग्जिट में रखना है एनालिसिस में, आपको यहाँ से वो क्वेश्चन वन बाय वन ऐड करना पड़ता है। जैसे कि हमारे में 3 टाइप्स का क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट है रेडियो बटन, सेकंड है ड्रॉप डाउन लिस्ट, थर्ड है टेक्स्ट। यूजर कैन क्रिएटेड 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन का मीनिंग है नोट, उसमें आपको पेरेंट्स ग्रुप को सिलेक्ट करना नहीं पड़ता है। जब हमने पहले मैंने बताया ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, ग्रुप क्रिएट करने के बाद उसका क्वेश्चन एक हो जाता है। पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन सभी के लिए है, उसमें ग्रुप में ऐड नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे पेरेंट्स ग्रुप में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। बाद में है ग्रुप क्वेश्चन, सिलेक्ट पेरेंट्स ग्रुप में आपने ग्रुप क्वेश्चन में ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे पेरेंट ग्रुप में जो हमने पहले ग्रुप नेम क्रिएट किया है उसका ग्रुप नेम में ऐड करना है। फिर क्वेश्चन टाइप में कौन सा रखना है, रेडियो बटन में रखना है, ड्रॉप डाउन में रखना है या टेक्स्ट में रखना है। फिर है रीजन मास्टर, हमने मास्टर में जाके जॉब मास्टर में रीजन मास्टर क्रिएट करना पड़ता है एग्जिट के लिए। तो एम्प्लॉय क्यों छोड़ के जा रहा है, पर्सनल रीजन है, हेल्थ रीजन है, टर्मिनेट किया गया है, क्या बेटर अपॉर्चुनिटी मिला है, रीलोकेशन है, कैरियर गॉट है। उसके बाद हमारे में स्कीम क्रिएट करनी पड़ती है। कंट्रोल पैनल में जाके एम्प्लॉय में कंट्रोल पैनल में स्कीम में जाके स्कीम डिटेल्स में उसका स्कीम बनाना पड़ता है। जैसे कि एग्जिट है, जिस स्कीम है उसका करके हमने उसको रिपोर्टिंग मैनेजर वाइज असाइन करना पड़ता है, कितने लेवल पे आपको एग्जिट की एप्लीकेशन के अप्रूवल रिपोर्टिंग मैनेजर वाइज चाहिए। फिर होता है एम्प्लॉय स्कीम, जो हमने क्रिएट की है किया है उसको हम एम्प्लॉय में जाके उसको असाइन करेंगे। लाइक एम्प्लॉय में जाके प्रिविलेज और स्कीम में जाके असाइन करना पड़ता है, ऐड करके एग्जिट करके यहाँ से एग्जिट स्कीम असाइन करना पड़ता है सभी के लिए, तभी उसको वो एग्जिट का एप्लीकेशन वो बंदा कर सकता है। फिर है एफएनएफ के लिए, एनओसी लिए हमको एक अलाउंस बनाना पड़ता है। जैसे कि एक क्लियरेंस में कुछ उसका पेंडिंग है, मान लो हमने मैडम ने अभी बताया वो लैपटॉप नहीं दिया गया है, कुछ है, तो अलाउंस में एफएनएफ रिकवरी में उसका अलाउंस बनाया जाता है। जैसे कि लिए मास्टर में जाके कंपनी स्ट्रक्चर में अलाउंस डिडक्शन, मास्टर में जाके अलाउंस नेम में एफएनएफ रिकवरी, शॉर्ट नेम में एफएनएफ, अलाउंस टाइप में सैलरी है, ऑन एफएनएफ रिकवरी एनओसी पे रखना है। आफ्टर मोड सेटिंग में ऑन फुल एंड फाइनल पे क्लिक करके आफ्टर सेव पे क्लिक करना है, तो आपका एक अलाउंस क्रिएट हो जाएगा एफएनएफ रिकवरी करके। एफएनएफ रिकवरी करने के बाद अलाउंस बनाने के बाद हम एम्प्लॉय सभी एम्प्लॉय को वो असाइन करेंगे एफएनएफ रिकवरी का अलाउंस जो हमने क्रिएट किया था वो। बाद में ईएसएस यूजर में जाके वो एम्प्लॉय एग्जिट एप्लीकेशन करेगा। क्या रीजन हमने जो बनाया था वो रीजन सिलेक्ट करेंगे, जैसे करियर कोड है, हेल्थ रीजन है, जो भी है वो रीजन यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, बाद में सेव करेगा बंदा। सेव हो जाने के बाद वो उसका व्हेन यूजर क्लिक ऑन व्यू एग्जिट अप्रूवल मैनेजर डिटेल्स एंड स्टेटस शो, जब भी एप्लीकेशन हो जाने के बाद वो एम्प्लॉय यहाँ पे से व्यू पे से क्लिक वो देख सकता है रिपोर्टिंग मैनेजर ने किस कौन सा रिपोर्टिंग मैनेजर ने अप्रूवल किया है, व्यू किया है या डिलीट रिजेक्ट किया है, वो एम्प्लॉय देख सकता है। बाद में एग्जिट एप्लीकेशन अप्रूवल के डिटेल में स्कीम, हमने जो स्कीम बनाया था उसमें स्कीम वाइज में अप्रूवल बाय ऑल मैनेजर, आफ्टर मैनेजर अप्रूवल एम्प्लॉय कैन गो फॉर इंटरव्यू मल्टीपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट अप्रूवल। अब एम्प्लॉय ने जब एप्लीकेशन किया था, एप्लीकेशन हो जाने के बाद उस जो हमने स्कीम में जो मैनेजर लेवल सेट किया है वो मैनेजर में वन बाय वन वो अप्रूवल के पास जाएगा। वो मैनेजर अप्रूवल हो जाने के बाद मैनुअल अप्रूवल हो जाने के बाद फाइनल रिपोर्टिंग मैनेजर सिलेक्ट क्लियरेंस मैनेजर हु कैन अप्रूवल द क्लियरेंस डिटेल्स एज पर जो हमने
जो सेट फर्स्ट मैंने बताया था एडमिन सेटिंग में जो सेट किया था क्लियरेंस रिमाइंडर डेज, उसके हिसाब से यहाँ पे कोस्ट सेंटर वाइज ईमेल का मैनेजर वो सेट कर देंगे, उसके हिसाब से एम्प्लॉय को वो रिमाइंडर डेज का नोटिफिकेशन ईमेल थ्रू जाएगा। जो हमने क्लियरेंस मैनेजर जो मैंने पहले बताया जनरल सेटिंग में जो मैनेजर क्रिएट किया था क्लियरेंस में जाके वो यहाँ पे आपको शो होगा। फिर एग्जिट इंटरव्यू में फॉर इंटरव्यू शेड्यूल फॉलो द स्टेप, जैसे के लिए फर्स्ट ऑटो असाइन एग्जिट इंटरव्यू फीडबैक क्वेश्चन है, मैन्युअल असाइन भी कर सकते हो फीडबैक क्वेश्चन। फिर थर्ड है इंटरव्यू शेड्यूल डेट कैन बी मल्टीपल सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, आप मल्टीपल एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके एक डेट सेट कर सकते हो, जैसे के लिए यूजर कैन चेक एग्जिट क्लियरेंस मैनेजर लिस्ट और अपडेट इट। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जिट इंटरव्यू के एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, रेजिग्नेशन डेट, ऐड क्वेश्चन, आप यहाँ से क्वेश्चन ऐड भी कर सकते हो और डिपार्टमेंट में जो हमने क्वेश्चन क्रिएट किया था वो बाय डिफॉल्ट डिफाइन भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंटरव्यू फीडबैक में बताएगा आपका पेंडिंग है। इंटरव्यू फीडबैक हो जाने के बाद यहाँ पे क्लियरेंस मैनेजर पे क्लिक करने के बाद वो क्लियरेंस का मैनेजर वो उसके लिए वो क्लियरेंस करेंगे जो भी क्लियरेंस में है। मल्टीपल एम्प्लॉय इंटरव्यू शेड्यूल सेट डेट, आप यहाँ से शेड्यूल एग्जिट इंटरव्यू मल्टीपल एम्प्लॉय को सेम डेट का एग्जिट इंटरव्यू डेट सेट कर सकते हो। बाद में है ऑटो असाइन क्वेश्चन एज पर डेजिग्नेशन वाइज, जो हमने पहले डेजिग्नेशन वाइज असाइन किया था क्वेश्चन क्रिएट किया था। आप यूजर कैन ऐड एंड रिमूव क्वेश्चन, आप व्यू क्वेश्चन कर सकते हो, आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो और नया क्वेश्चन ऐड भी कर सकते हो। जैसे के लिए पहले हमने जो क्वेश्चन बनाया था वो व्यू क्वेश्चन में शो होगा और आपको नया क्वेश्चन ऐड करना है तो आप ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप नया क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। मैन्युअल असाइन क्वेश्चन एज पर डिफाइन क्वेश्चन एनालिसिस मास्टर करके। फिर है क्लिक ऑन क्लियरेंस मैनेजर आइकॉन, इट इज शो क्लियरेंस मैनेजर डिटेल्स, इफ यूजर वांट टू ऐड अदर क्लियरेंस मैनेजर देन ऐड इट। जो मैंने पहले बताया था जैसे के लिए आप यहाँ से क्लियरेंस मैनेजर का जो यहाँ पे आइकॉन दिया गया है उसमें वो मैनेजर का शो होगा। जैसे के लिए यहाँ से मैनेजर जितने भी हमने 9 रिकॉर्ड क्रिएट किया था मैनेजर में वो 9 रिकॉर्ड यहाँ पे फाउंड होगा, उसका क्लियरेंस किसके पास जाना चाहिए वो यहाँ से आप क्लिक करके सेव कर सकते हो। बाद में इंटरव्यू शेड्यूल फीडबैक लिंक ऑटोमेटिकली ईएसएस का डैशबोर्ड ऊपर चले जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसा आएगा योर एग्जिट इंटरव्यू हैज बीन शेड्यूल्ड, जैसे के लिए यहाँ पे फिलअप है पॉपअप मैसेज कम ऑफ नोटिफिकेशन, जब भी ईएसएस लॉगिन करेगा एम्प्लॉय पाएगा योर एग्जिट इंटरव्यू हैज बीन शेड्यूल्ड फीडबैक रिक्वायर्ड, fill up feedback question from schedule interview detail till feedback given of FNF। आपका जो इंटरव्यू था वो शेड्यूल हो गया है, वो फीडबैक के देने के बाद यहाँ से आप पे क्लिक करना है। बाद में आप जो हमने फीडबैक का जो क्वेश्चन क्रिएट किया था वो आपको शो होगा। इन दिस पेज क्रिएट डायनेमिक क्वेश्चन लिस्ट एज पर क्वेश्चन टाइप डिफाइंड इन मास्टर, हमने जो मास्टर में क्वेश्चन क्रिएट किया था वो यहाँ पे फिलअप होगा। बाद में एम्प्लॉय क्लियरेंस में जाएगा, फीडबैक हो जाने के बाद उसका एग्जिट क्लियरेंस मैनेजर के पास जाएगा, जो क्लियरेंस का मैनेजर होगा उसके पास, जैसे के लिए उसका नाम, उसका कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग, उसका रिपोर्टिंग कौन है, कौन सा ब्रांच है, रेजिग्नेशन डेट कौन सा है, उसका सब डिपार्टमेंट कौन सा है। फिर हमने जो क्लियरेंस एट्रीब्यूट मास्टर क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो होगा, जैसे के लिए ऑफिस रिकॉर्ड है, लेटर पेड डिपॉजिट है, तो उसका रिकवरी अमाउंट है, तो वो क्लियरेंस मैनेजर जो है वो यहाँ पे अमाउंट रिकवरी पे फिलअप करेगा। फिर स्टेटस में एक्सेप्ट है, पेंडिंग है या होल्ड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके रिमार्क लिख के आप ब्राउजर पे क्लिक कर सकते हो। उसका अटैच पे आपका पास जो डॉक्यूमेंट मैनेजर के पास होता है वो यहाँ से अटैच कर सकते हैं। बाद में
अप्रूवल और रिजेक्ट पे एम्प्लॉय क्लिक कर सकता है। बाद में एग्जिट क्लियरेंस हो जाने के बाद, मैनेजर ने अप्रूवल हो जाने के बाद ईएसएस होम पेज पर एक लिंक आएगी, एग्जिट क्लियरेंस लिंक ऐसे करके। एग्जिट क्लियरेंस लिंक पे आपको पता चलेगा फाइनल क्लियरेंस अप्रूवल में कौन सा आपने अप्रूवल किया है, कौन सा आपने पेंडिंग है, कौन सा आपका होल्ड पे रखा किया है क्लियरेंस। फिर क्लियरेंस हो जाने के बाद वो जाता है एडमिन के पास एनओसी अप्रूवल के लिए। फिर एनओसी अप्रूवल के लिए आपको यहाँ पे होम पेज ऊपर दिखाएगा एग्जिट एनओसी। जैसे कि if exit clearance manager not approve details, admin can fill clearance details and upload related document which is necessary. After approval या reject NOC, exit clearance details mail sent to particular employee and manager. जैसे के लिए क्लियरेंस हो जाने के बाद, अप्रूवल हो जाने के बाद एडमिन के पास एनओसी के लिए जाएगा। जैसे के लिए आपको पता चलेगा कि जैसे कि लोन कितनी पेंडिंग है, ये है अकाउंट के पास आया है कि पता चलेगा लोन कितनी पेंडिंग है, इनकम टैक्स क्लियरेंस पेंडिंग है या हो गया है। वो यहाँ से आप नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल, रिसीव हो गया तो रिसीव, पेंडिंग है तो पेंडिंग, फिर स्टेटस में अप्रूव या रिजेक्ट, रिमस लग के आप यहाँ से उसका डॉक्यूमेंट जो आपके पास मैनेजर के पास होगा वो यहाँ से अटैच करके सेव कर सकता है। बाद में क्लियरेंस एग्जिट क्लियरेंस अप्रूवल डिटेल्स, जैसे के लिए यहाँ से पता चलेगा किस किसने अप्रूवल किया है। जैसे के लिए हमने पहले इन्वेंटरी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने अप्रूवल कर दिया है, यहाँ से आपका स्टेटस पता चलेगा क्लियरेंस मैनेजर को, लास्ट मैनेजर को, कि कितने कितने बंदे क्लियरेंस मैनेजर ने अप्रूवल किया है, कितने मैनेजर ने रिजेक्ट किया है। तो आप इजीली फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हो। फिर एग्जिट क्लियरेंस अप्रूवल हो जाने के बाद एम्प्लॉय को ईमेल जाता है कि आपका क्लियरेंस अप्रूवल हो गया है। जैसे कि लिए प्रोडक्शन का था, इन्वेंटरी का था, और क्लियरेंस का मैनेजर का नाम, किस मैनेजर ने आपका क्लियरेंस अप्रूवल किया है, ये ईमेल एम्प्लॉय को आ जाएगा एग्जिट क्लियरेंस डिटेल्स नाम करके। बाद में एनओसी गिवन डिटेल्स, ये एनओसी गिवन एडमिन के लॉगिन पे होता है। जैसे व्हेन क्लिक ऑन प्रिंट बटन, एडमिन कैन सी एक्टिव क्लियरेंस डिटेल। जैसे के लिए सभी क्लियरेंस मैनेजर ने उसका जो भी क्लियरेंस था सभी ने अप्रूवल कर दिया, बाद में आप एनओसी गिवन पे ऑटोमेटिकली एक कर्सर आ जाएगा। बाद में एडमिन वो प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि क्वेश्चन, यहाँ से उसका डॉक्यूमेंट वो प्रिंट आप सेव करके आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट में इनकम टैक्स रिकवरी 1000 था, वो रिसीव किया था, लोड नहीं है, फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का 10 रुपये चार्ज लगाया गया है, उसका पेंडिंग है या अप्रूवल है, वो यहाँ से आप वो बाइफरकेट कर सकते हैं। बाद में एडमिन लॉगिन में when click on feedback given, लिंक पे एडमिन कैन सी द इंटरव्यू फीडबैक डिटेल्स। आप जी जब भी क्लियरेंस खत्म हो जाता है तो ईएसएस में एक फीडबैक की जो बटन होता है वो इनेबल हो जाता है। बाद में एम्प्लॉय उसका एग्जिट इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर जो हमने क्रिएट किया था वो उसका आंसर यहाँ पे फिलअप करके वो सेव करता है। आफ्टर final exit, user can click an approval link. आफ्टर अप्रूवल एडमिन सभी हो जाने के बाद एग्जिट एनओसी हो गया, एग्जिट क्लियरेंस हो गया, बाद में लास्ट में आपको एडमिन में पूछेगा कि आपको एक एप्लीकेशन अप्रूवल करना है या रिजेक्ट करना है। आप यहाँ से अप्रूवल और रिजेक्ट कर सकते हो। आपने अप्रूवल कर दिया तो बाद में आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्रिएट करने के बाद एफएनएम डिडक्शन एंड रिकवरी डिटेल्स में आपको जो हमने एफएनएम रिकवरी नाम का अलाउंस क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो होगा। उसमें आपको अमाउंट डालनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जनरेट करके आएगा। जैसे के लिए एड फुल एंड फाइनल डिटेल्स में एंड दैट व्यू एग्जिट क्लियरेंस रिकवरी डिटेल्स एंड एफएनएम डिडक्शन टोटल रिकवरी अमाउंट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगी। जैसे के लिए यहाँ पे एफएनएम डिडक्शन में एफएनएम रिकवरी का 110 अमाउंट यहाँ पे शो होगा।
शो हो जाने के बाद वो FNF आप सेव करोगे, बाद में उसका रिपोर्ट एग्जिट क्लियरेंस का रिपोर्ट है। रिपोर्ट में जाके लेटर में जाके एग्जिट क्लियरेंस लेटर पे आप जब क्लिक करोगे, बाद में आपको यहाँ पे एम्प्लॉय सर्च करना पड़ेगा। फॉर्मेट यहाँ पे फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2 और डिफॉल्ट फॉर्मेट है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तभी आपका एक डॉक्यूमेंट PDF फाइल के आपका एक लेटर आ जाएगा। यहाँ पे इनकम टैक्स फाइनेंशियल, जैसे ही आपने क्लियरेंस किया था, जैसे कि फाइनेंस एंड अकाउंट ने क्या क्या वो चेक किया था, आपका इनकम टैक्स का रिकवरी था, लोन का पेंडिंग था, क्रेडिट सोसाइटी है, एनी फिर HOD में क्या क्या एनी अदर PL स्पेशलिटी है तो नहीं है, फिर यहाँ से वो लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो और एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हो। बाद में एग्जिट इंटरव्यू रिपोर्ट, हमारे में एग्जिट इंटरव्यू का रिपोर्ट में जाके अदर रिपोर्ट में एग्जिट इंटरव्यू नाम का रिपोर्ट है, उसमें फाइंड करके फॉर्मेट नंबर 2 यहाँ पे ब्लैंक इंटरव्यू फॉर्म है। आप ब्लैंक इंटरव्यू फॉर्म निकाल के प्रिंट करके आप एम्प्लॉय खुद को भी फिलअप कर सकते हो। फिर है इंटरव्यू फीडबैक फॉर्म भी निकलता है, जो इंटरव्यू में आपने जो फीडबैक दिया था ESS यूजर ने, वो फीडबैक का लेटर भी निकलेगा। फिर फॉर्मेट 2 सिलेक्ट करके यहाँ से जो एम्प्लॉय ने सिलेक्ट एग्जिट एप्लीकेशन किया है वो एम्प्लॉय सिलेक्ट करके बाद में आपको यहाँ से एग्जिट इंटरव्यू फॉर्म शो होगा। जैसे के लिए आपने जो इंटरव्यू दिया गया था, व्हाट इज रीजन था फॉर कोर्ट के लिए, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट वर्किंग इन द कंपनी, जैसे हमने जो क्वेश्चन दिया था और आंसर एम्प्लॉय ने दिया था वो इंटरव्यू के लिए, वो यहाँ से वो लेटर आपको शो कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमारे रिपोर्ट में जाते, अदर रिपोर्ट में यहाँ से ग्राफिकल का रिपोर्ट है। जैसे के लिए आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉय कौन से रीजन से कंपनी में तो छोड़ के जा रहा है, जैसे कि रीजन फॉर लिविंग, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट, फीडबैक एग्जिस्ट। जैसे के लिए हमारे में यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग, जैसे के लिए यहाँ से कलर वाइज आपको ग्राफिकल में पता चलेगा, जैसे कैरियर ग्रोथ के लिए कौन है, जॉब का है, फ्यूचर एजुकेशन है, वो यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे के लिए यहाँ से आप एग्जीक्यूशन फॉर लिविंग रिपोर्ट, जैसे के लिए आप देख लेते हो बेटर अपॉर्चुनिटी का, यहाँ से आप कलर यहाँ पे रेड कलर, तो बेटर अपॉर्चुनिटी को कौन से कलर में आपका कौन से मंथ का कितने बंदे जा रहा है छोड़ के, जैसे के लिए यहाँ पे दिख रहा है अप्रैल में कैरियर ग्रोथ के लिए 2 जन चले गए, तो यहाँ से आपको काउंट मिलेगा, यहाँ से आपको बाइफरकेशन मिलेगा, यहाँ से आपको काउंट मिलेगा कि भाई रीजन ऑफ लिविंग, आपने जो रीजन बनाया था तो कौन से रीजन से कौन किस रीजन से एम्प्लॉय ज्यादा छोड़ के जाता है। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई हैंड ओवर मिस सोनिया मैडम। Thank you, Umang, for such a wonderful presentation. So I just call upon Mr. Sargent to please share some insights of this FNF module. And before going to this FNF module, I just request all the attendees to please answer the surveys, because today also we are having the lucky draw event, and we also disclose the lucky draw event which was done earlier in the earlier webinar. So we will also disclose the participants of or I can say the winners of those previous webinars. So please be attentive and please answer those surveys, and you will receive a gift coupon which will be fully sponsored by Orange Technolabs. So let's just quickly go on to this full and final settlement part.
So I'll just call Mr. Sajid. Please, Sajid, take this session and it's over to you. Yeah. Good morning. My name is Sajid Manwa. Today हम आपको दिखा रहे हैं कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किस तरह प्रोसेस करना है। अभी आपको बताया उमंग ने कि जो एग्जिट मॉड्यूल किस तरह एम्प्लॉय एग्जिट एप्लीकेशन करेगा, एग्जिट अप्रूवल किस तरह करेगा और एग्जिट का क्लियरेंस होगा। जैसे ही एग्जिट का क्लियरेंस हो जाएगा तो एम्प्लॉय लेफ्ट होगा। लेफ्ट होने के बाद उसका किस तरह अपने को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट प्रोसेस करना है एम्प्लॉय का। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के अंदर दो मल्टीपल टाइप के सिनेरियो रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी बंदा एक लेफ्ट होता है तो उसका नेक्स्ट मंथ के अंदर एफएनएफ करते हैं। फॉर एग्जांपल मई मंथ के अंदर कोई बंदा लेफ्ट हुआ है तो उसका आप जून में एफएनएफ करते हो। सेकंड सिनेरियो होता है कि मई मंथ में लेफ्ट हुआ, सेम मंथ के अंदर एफएनएफ प्रोसेस करते हो। एक बंदा मई में लेफ्ट हुआ है और एफएनएफ करते हैं जून के अंदर, और एक बंदा मई में लेफ्ट हुआ है तो सेम मंथ मई में ही एफएनएफ करते हो। और एफएनएफ जब प्रोसेस करते हैं उसके साथ में अपने एम्प्लॉय को लीव इंकेसमेंट दे सकते हैं, बोनस, ग्रेजुएटी, रिएम्बर्समेंट। अगर इसने लोन लिया है तो लोन डिडक्शन भी हो जाएगा, होल्ड सैलरी, अदर अर्निंग, अदर डिडक्शन अपने एम्प्लॉय को फुल एंड फाइनल के अंदर दे सकते हैं। इसके साथ इसके अंदर है रिपोर्ट्स लेटर्स अवेलेबल है। साथ में एम्प्लॉय को लेटर्स भी अपने सेंड कर सकते हैं, फुल एंड फाइनल का एफएनएफ लेटर्स। तो सिनेरियो 1 है, सबसे पहले आपको एक सेटिंग होता है जो कंपनी जनरल सेटिंग के अंदर होता है। उसके अंदर एफएनएफ का जो सेटलमेंट का सेटिंग रहता है वो ग्रेजुएटी और लीव इनकेसमेंट का जो सेटिंग होता है डिपेंड्स ऑन योर पॉलिसी लीव इनकेसमेंट का। तो लेकिन जो ग्रेजुएटी का सेटिंग रहता है वो आपको डिफाइन करना है, तो एम्प्लॉय को फुल एंड फाइनल के अंदर अपने ग्रेजुएटी पेड कर सकते हैं। तो अभी जो है एज पर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हमने ग्रेजुएटी का पॉलिसी सेटिंग किया हुआ है। तो वो है अपने को कंपनी कंट्रोल पैनल के अंदर जनरल सेटिंग के अंदर सिलेक्ट, यानी कि एनीवन कोई भी ब्रांच सिलेक्ट करके आप ये सेटिंग कर सकते हो। अब है सिनारियो 1। अभी एक सिनारियो में आपको ऐसा दिखा रहा हूं कि जो एक बंदा लेफ्ट हुआ है मई मंथ के अंदर और उसका सैलरी बना अपने एफएनएफ प्रोसेस करेंगे जून मंथ के अंदर। तो ये बंदा जो मई मंथ में लेफ्ट हुआ है तो मई मंथ की जब भी मैं सैलरी प्रोसेस करूंगा, अगर आपका पॉलिसी ऐसा है कि हम पहले लेफ्ट करते हैं और उसको सैलरी होल्ड करते हैं और नेक्स्ट मंथ के अंदर उसको सेटलमेंट करते हैं फुल एंड फाइनल का, तो जब भी आप सैलरी प्रोसेस करते हो तब यहाँ से आपको लेफ्ट एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लेना है, एम्प्लॉय स्टेटस। वहां पे आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे होल्ड सैलरी। तो यहाँ से आप होल्ड सैलरी लेफ्ट एम्प्लॉय की प्रोसेस करोगे, वो होल्ड सैलरी है वो आपको एफएनएफ के अंदर प्रोसेस होगा, ऐड होगा। तो आपको सबसे पहले होल्ड सैलरी करना है। अगर होल्ड आप सैलरी नेक्स्ट मंथ में पे करते हो तो होल्ड सैलरी करना है। जैसे सैलरी प्रोसेस कर दिया, अब एफएनएफ कैसे प्रोसेस करना है। एफएनएफ प्रोसेस के लिए सैलरी डिटेल्स के मेनू के अंदर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, उसके अंदर ऐड करना है। क्लिक हियर फॉर ऐड एफएनएफ प्रोसेस। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको जून मंथ में अभी एफएनएफ कर रहे हैं, अब जो भी बंदे लेफ्ट हुए हैं आपके तो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे एम्प्लॉय के अंदर। तो मिस्टर रमेश कुमार है वो बंदा लेफ्ट हुआ है, उसकी अपनों ने सैलरी होल्ड किया है। एम्प्लॉय जैसे सिलेक्ट करके अपने गो करेंगे तो गो करने के बाद ये रिकॉर्ड बाइंड होता है नीचे, तो एम्प्लॉय का जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिटेल्स आता है।
तो उसका टोटल ईयर इन कंपनी, कितना टोटल एक्सपीरियंस हुआ है, सारा चीज यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। फिर उसका लेफ्ट डेट है, तो ये बंदे का लेफ्ट डेट है 20 मई 2020, रेजिग्नेशन डेट। अब यहाँ से आप एम्प्लॉय का जो भी डिडक्शन होता है, जैसे कि शॉर्टफॉल डेज है, इस बंदे के शॉर्टफॉल डेज है 1, फिर आपको ग्रेजुएटी पे करना है तो टिक मार्क करना है, अगर ग्रेजुएटी पे नहीं करना है तो आप अनटिक करना है। फिर लीव इनकेसमेंट पेड करना है तो आप लीव इनकेसमेंट पे टिक कर सकते हो, अदरवाइज अगर पेड नहीं करना है तो अनटिक कर सकते हो। डीएस है, फिर एरियर डेज है, अगर इन केस आप किसी एम्प्लॉय को प्रीवियस मंथ को एरियर डेज देना चाहते हो तो आप एरियर डेज भी डाल सकते हो इसमें। तो वो बैक प्रीवियस मंथ के जो भी मंथ के हिसाब से वो कैलकुलेशन करके देगा एफएनएफ में। फिर लीव रिकवरी डेज, फिर बोनस है। ओके, फिर यहाँ पे आपको जो भी बंदे का लीव बैलेंस होगा, जो भी एम्प्लॉय की एप्लीकेशन होगी, जो भी लीव होगी, डिपेंड्स ऑन योर कंपनी पॉलिसी। आपने जो भी लीव को एनकेसेबल रखा होगा, वो लीव पूरी की पूरी यहाँ पे डिस्प्ले होगी, उसका जो भी एग्जिस्टिंग बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको करना है कि कितनी लीव आपको अप्रूव करनी है एफएनएफ के अंदर। तो ये बंदे की इनकेसेबल डेज है 115 है, यहाँ पे अभी अप्रूवल डेज डाली हुई है 115। और अगर आप किसी एम्प्लॉय को का जो लीव बैलेंस है वो टैक्स फ्री देना चाहते हो तो आप टैक्स फ्री पे भी टिक मार्क कर सकते हो। फिर है एफएनएफ अर्निंग एंड एफएनएफ डिडक्शन। कोई जो भी अपने इंपोर्ट वाले जो भी वेरिएबल अलाउंसेस है कि एवरी मंथ वेरिएबल है, कुछ और आपको डिडक्शन करना चाहते हो आप, तो यहाँ से आप डिडक्ट कर सकते हो। जैसे कि अदर अर्निंग है 5000, फिर टीडीएस 0 है, अदर डिडक्शन है 1000। उसके साथ साथ में होता है रिइंबर्समेंट कंपोनेंट। अगर कंपनी एम्प्लॉय को रिइंबर्समेंट का अलाउंस दे रही है, जैसे कि एलटीए है, व्हीकल अलाउंस है, जो भी रिइंबर्समेंट अलाउंसेस है, अगर वो कंपनी एम्प्लॉय को ऑटो पेड नहीं देती है, ओके, कि वो क्लेम करके ले सकता है, तो इन केस तो उसका जो भी एग्जिस्टिंग का उसका जो बैलेंस जमा होगा कंपनी के पास, वो एफएनएफ के अंदर आप उसको दे सकते हो। तो जो भी उसका लीव ट्रैवल का जो भी उसका अकाउंट में जो क्रेडिटेबल अमाउंट होगा, वो सीधा आप रिइंबर्समेंट कंपोनेंट यहाँ से आप सिलेक्ट करके पे कर सकते हो। उसके साथ साथ में अभी जो आपने होल्ड सैलरी किया है, वो होल्ड सैलरी भी आप सिलेक्ट करके एफएनएफ के अंदर प्रोसेस कर सकते हो। तो जो प्रीवियस अभी होल्ड सैलरी किया है, इस बंदे का इस मंथ के अंदर अपने पे होल्ड सैलरी भी पे आउट करते हैं अभी। तो ये एग्जांपल जो मैंने लिया है, इसके अंदर जो एम्प्लॉय का रिइंबर्समेंट भी आ गया है, होल्ड सैलरी भी। अदरवाइज किसी बंदे का लोन डिडक्शन होगा, लोन चल रहा है और उसने लेफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे आपको लोन भी दिखाई देगा। तो जो भी है वो उसका ड्यू ड्यू अमाउंट जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप सिलेक्ट करके अप्रूवल करके फिर आप प्रोसेस कर, नीचे से प्रोसेस करते हैं। जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो ये बंदे का मिस्टर रमेश कुमार का एफएनएस प्रोसेस सेव सक्सेसफुली हो गया, जनरेटेड हो गया। उसका नेट अमाउंट बन गया इतना 2,22,383। ओके, अब इस बंदे का आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, तो रिपोर्ट इस बंदे का जो एफएनएफ किया है अपनों ने, तो एफएनएफ जो लेटर्स होता है उसके अंदर सारा चीज इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाता है। जैसे कि उसका लिविंग डेट होता है, उसका जो शॉर्टफॉल डेज का जो नोटिस पीरियड अपनों ने मेंशन किया था वो, अगर अदरवाइज अपना लीव एक्सेस रिकवरी भी मेंशन किया होता तो वो भी आ जाता। फिर लीव इनकेसमेंट कितने किए वो भी आ गया। उसके साथ साथ में जो भी है इंफॉर्मेशन, उसका फुल एंड फाइनल डेट कब फुल एंड फाइनल किया, अदरवाइज उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारा चीज इसमें कैप्चर हो जाता है उसके मास्टर में से। अब यहाँ पे
प्रोसेस किया तो अपनों ने लीव ट्रैवल अलाउंस, जो रिएम्बर्समेंट अलाउंस था, उसको इतना पेड मिला, क्योंकि उसका अप्रैल और मई का जो भी बैलेंस उसके क्रेडिट हुआ था वो यहाँ पे सीधा पेड हो गया। उसके साथ अदर अर्निंग जो अपनों ने अदर एक्स्ट्रा कोई एम्प्लॉय को देना था वेरिएबल अमाउंट, वो भी आ गया। उसके जहां पे वहां पे कमेंट दी होगी वो कमेंट भी यहाँ पे मेंशन हो जाती है कि किसके लिए ये अपनों ने अदर अमाउंट दिया है। तो जो भी कमेंट मेंशन करेंगे अदर वेरिएबल अमाउंट की, वो कमेंट भी मेंशन एफएनएफ लेटर्स में होगी। उसके साथ लिव इंक्रीजमेंट का अमाउंट आ गया, ग्रेजुएटी आ गई, फिर होल सैलरी आ गई। तो इसके हिसाब से टोटल ग्रोस टोटल इनकम बन गई। उसके साथ अदर डिडक्शन, तो अदर डिडक्शन जो वेरिएबल डिडक्शन किया है वो भी 1000 रुपीज से पीटी डिडक्ट हुआ, शॉर्टफॉल डिडक्शन हुआ। उसके हिसाब से उसका नेट अमाउंट पेबल बन गया। अभी ये जो रिपोर्ट होता है, ये रिपोर्ट जनरेट हो गया। ये सिनारियो 1 का मैंने बताया कि जो होल्ड सैलरी पे विद एफएनएफ। अब आपको मैं एक दूसरा सिनारियो दिखा रहा हूं कि जो बंदा जून में लेफ्ट हो रहा है और जून ही मंथ में अपने को उसका एफएनएफ सेटलमेंट प्रोसेस कर देना है विदाउट होल्ड सैलरी, सेम मंथ में प्रोसेस करना है। तो आपको मैं सिनारियो सेकंड नंबर का सिनारियो दिखा रहा हूं। एक बंदा है मिस्टर एम ए त्रिवेदी करके, वो बंदा लेफ्ट हुआ है। वो लेफ्ट हुआ है 4/6/2020, यानी कि जून मंथ के अंदर 1 जून 2020 को वो बंदा रेजिग्नेशन हुआ है, उसका लेफ्ट हुआ है। ओके, अब उसका सेम मंथ में एफएनएफ प्रोसेस करना है। अब आप सेम मंथ में एफएनएफ प्रोसेस करोगे तो उसका जो एक्चुअली अटेंडेंस होगी, उसके जो एक्चुअली प्रेजेंट डे होंगे, वो सीधा फेच करके लेके आएगा। जिस तरह आपने नॉर्मल सैलरी कैसे करते हैं, जैसे कि अपने मई का सैलरी करते हैं, तो उसका एक्चुअली जो अटेंडेंस होता है वो लेके आता है। तो एफएनएफ प्रोसेस के अंदर भी वही थिंग है कि जिस तरह आप एफएनएफ सेम मंथ में प्रोसेस करोगे तो उसका जो अटेंडेंस है वो पूरा अटेंडेंस इसमें लेके आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो अटेंडेंस जैसे ही लेके आएगा अटेंडेंस, उसके हिसाब से आपने जो पीछे मैंने बताया कि आपको लीव इंकेसमेंट देना है, ग्रेजुएटी देना है, बोनस देना है, फिर प्रिविलेज लीव कितनी अप्रूव करनी है, वो आप अप्रूव कर सकते हो। साथ साथ में आपको कुछ अदर अर्निंग देना है, अदर डिडक्शन। अभी पहले सिनारियो में मैंने सारा चीज फिलअप करके बताया। अब इस सिनारियो में मैंने कुछ नहीं दिया है, जस्ट प्रेजेंट डे, और इसमें कोई रिएम्बर्समेंट भी नहीं है एम्प्लॉय के अंदर, राइट। तो यहाँ से जैसे सेव करते हैं तो यहाँ पे अपने ने प्रेजेंट डे आ गया, 3 दिन आ गया है। अब इस बंदे का 3 दिन का एफएनएफ के अंदर सेम मंथ में प्रोसेस हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से स्टार्ट प्रोसेस करना है, सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो एम्प्लॉय का जो प्रेजेंट डे होगा 3 लेके आ जाएगा। तो डेज एफएनएफ पेबल 3 डेज। तो 3 डे के हिसाब से उसका सैलरी कैलकुलेट बन गया। यहाँ पे पर डे पर यहाँ पे अर्निंग और डिडक्शन दिख रहा है। 3 दिन के हिसाब से यहाँ पे उसका जो सैलरी कंपोनेंट होगा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके दे दिया। और अदरवाइज उसका लीव बैलेंस होगा तो लीव बैलेंस भी उसको पेड इनकेसमेंट मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से उसका अर्निंग और डिडक्शन हो जाएगा कैलकुलेशन। जो भी कंपोनेंट होंगे अलाउंस एंड डिडक्शन, उसके हिसाब से 3 दिन के हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा। फिर उसके लेटेस्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो आप रिपोर्ट के मेनू में जाना है। रिपोर्ट के मेनू के अंदर जो लेटर्स के फॉर्म के अंदर एफएनएफ लेटर्स है, एफएनएफ लेटर्स के ऊपर क्लिक करोगे आप। जैसे ही क्लिक करोगे आप एफएनएफ लेटर्स के ऊपर, आप जिस मंथ सिलेक्ट करके फाइंड आउट करोगे आप, तो वही मंथ में जितने बंदे का एफएनएफ बना होगा वो बंदे यहाँ पे आपको एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स के अंदर मिलेंगे। और यहीं से आप सिलेक्ट करके आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो और एम्प्लॉय को ईमेल भी कर सकते हो अगर रिपोर्ट ईमेल करना है। और यही जो रिपोर्ट होता है
वो रिपोर्ट आपके लेटर हेड के ऊपर भी प्रिंट आउट कर सकते हो और आप विदाउट लेटर हेड भी निकाल सकते हो और विथ लेटर हेड भी ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके जो कंपनी का लेटर हेड होगा उसके ऊपर आप सीधा प्रिंट आउट करके एम्प्लॉय को लेटर दे दो, हैंड टू हैंड लेटर दे सकते हो, अदरवाइज ईमेल भी आप कर सकते हो। तो एफएनएफ के अंदर मैंने आपको दो प्रोसेस बताया, एक होल्ड वाला और एक डायरेक्ट सीधा एफएनएफ प्रोसेस करना है विदाउट होल्ड सैलरी। तो आपको कुछ भी आप क्वेरी हो तो आप एक क्वेश्चनरी में नोट कीजिए सर, तो हम आपको बता देते हैं। और थैंक यू एवरीवन। और आपको कुछ सपोर्ट हो तो आप हमारे सपोर्ट ईमेल आईडी पे भी आप इमीडिएटली या कभी भी कर सकते हो, तो हमारी टीम आपको इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करेगी। ओके, थैंक यू। Thank you so much, Sajid, for such a great insight. I hope every employee, every HR or every attendee which is in the webinar is getting the valuable inputs from today's session. So moving on to today's session, we'll move forward with the question answer session, and everybody is requested to please post their questions on question box, and we are ready to take the questions. So the first question is from Ms. Roma Sen Gupta, and she's asking what is the use of group questions. Mr. Chintan has already answered this question, but I want to like to say Chintan, request Chintan to please address this question again so that all the attendees should get the answer of this this question, because everybody has these questions generally in the mind. So what is the use of group questions? Roma Sen is asking. Roma Sen Gupta is asking. So Mr. Chintan, can you please address this question? Sure. Actually, the things is that why we are just creating the group, because of in your organizations you have the different kind of group, like in the terms of like a level of the employees. So some are the down level employees, some are the like middle level, or some are the senior level. So in each level you have different kind of questionnaires, or maybe there was different kind of segments are there, so you can attend the different kind of questionnaires at that particular time. So you can just create a group according to the what kind of feedback you expect from the employee. Because of if you'll just talk about the management employees, so they have different questionnaires. For a downline employee they have a different questionnaire, so you can just create a group accordingly. You can just map your questionnaire with the group, and you can take a feedback from the employee. Okay. Hope everybody. The next question is again. Yes, because you have explaining so in depth, so I hope every attendee is very clear with the answer. The next question is from Roma itself, and she's asking, is resignation is possible through this exit module? Chandra, should I repeat this question? Can you repeat? Yes. Roma is asking that is it possible that we can do resignation process from this module? Yes, I think Umang have already shown that particular part from where to go and process the resignation, because of I think she asked this questions before that screen appears over here. Okay, so till the timing when she asked the question, so their screen was not shown over there by Umang, so that has been resolved. Okay. Okay. The next question is from Mr. Chetan Joshi, and he is asking, if we process FNF in the same month, then that employee's detail would be there in salary register, or we need to have separate register for FNF? Okay, so that is a good question. Actually, I was going to clear about the such a, because of I think Sajid have raised similar things, but he forgot to address the certain things. See, if we are processing the salary and if we are putting the hold for this month, so if today like June month is there, so if I am just processing the salary of May month and I'm just putting on the hold, so in May month I could not process the FNF. In a month I can process the FNF
without holding the salary, or I can just process the salary. So once I'll just process the salary in May month, so I can process the FNF in June month. Or if I'm not processing the May month salary, then I can have that particular month input and I can have the FNF process in the same May month. So it is up to the organizations, their internal process. They can process the similar things for you, but they need to take care. On the same month, if employees last month is there and if you are just processing the salary, then they cannot do the FNF in the same month. They need to go for FNF in the next month onwards. Okay, so these are the process. So if we are processing, if they have not processed the, if my last day is in May month and if I am not processing the salary, then I can do the FNF and I can get those salary inputs in the same FNF month. So I can do the FNF in the same month also. Again, they have raised one more questions. So for FNF, we have the, in, if you just go in a customized report, there you will get a like segregated like FNF registers to be over there. So if you just process the salary with FNF, so you will need to download the FNF registers. And if you are just processing like salary and you're putting the hold, so those already, those record are already getting covered in the normal salary register, but you will just find the status as hold. I hope everybody will get clear on the same. Definitely, Chintan. The next question is from Roma again, and she is asking from where employee will put a resignation letter to his manager in the system. After that, only his exit will start. That screen is already shared by Umang. Ki how to process the, how to apply the exit. Just hold on. I'm just showing you one more time. Hold on a second. Yeah. Sure. Just hold on. Are you able to see my screen? Hello. Okay. Yes. Sure. Just hold on. So here, employee need to log in the systems. Once they log in the system, they have this particular menu where they just click on exit applications. Once they just click on exit applications, so they need to put up the certain things to be over here and they need to submit the buttons. So once they will submit the button, okay, it will go for an next procedure. So these are the procedure for the exit applications. I hope Roma will get clear on the same. Yes, definitely. Okay. The next question is from Mr. Saurabh Shah, and he is asking, can we enter manual date in this exit application? Yes. Here the things is that see, because of we cannot process the exit application because we have not given that particular rights. We have not given that particular rights to the employee because of, see, whenever employee is doing their exit application, they need to do the application on the same date. Because of it will happen that almost all the employee come to know that my notice period is 60 days. So once they will just put the resignation back the date, so their notice period will get reduced. So we have not given this option to the employee, but obviously we have given this option to the admin, so admin can put up that particular dates whenever it get received. Because sometimes what happened, people are not applying that application from the HRMS, but they are some are the confidential cases which may be processed through the like under the table or maybe off the record, so that can be done from the admin side.
I hope they'll get. I hope Saurabh is very clear with this answer. And the last question of the session is how to hold the absconding cases. Okay. For absconding cases, I think almost in the last session we have just cleared out because we can set up the options over here. If employee is not marking the attendance from Chintan, your voice is cracking. Okay. Now, Chintan, can you please repeat these because your voice was cracking? Sure. So, if we'll just talk about this in the last few sessions, we have addressed a similar query because of we can set up the options over here. If employee is not coming to the office for 5, 6 or 10 days, so we can make that employee login as inactivated. So that is we have set up the options in admin setting. So if employee is not marking the punch or a system is not receiving any punch from particular date which we have defined in admin settings, in that case those employee will listed in a separate menu. Just hold on, I'm just showing the similar things. Wait a minute. Just hold a second. Yes. Chintan, we are unable to see your screen. Just hold on, I'm just logging the screen. So once it will get login, I'll just share to you. I think now you can. Hello Sonia, now are you able to see my screen? Yes, I am able to see the screen. Yes. Okay. So here you can see that key whatever we have set up the like minimum days for not marking the absence, so we can categorize those employee as a inactive users, and then you can just process the similar things for absconding employees. Actually, we have received 2 more questions from the attendees, and let's take those questions. So the question is from Mr. Chetan Joshi, and he's asking how we can share FNF letter to left employees, Hope systems, and this on their personal IDs. Okay. You can go on a report menu. You can go on a report menu where if you just find the letters,
go in a FNF letters. Just hold on. I don't know. I'm not finding any employees over here. Okay. Here the option is there. You can just click mark over here and you can email the things from over here. So it will send to the employee. But before sending, you can just export the similar letters for cross verification. So it will better to have a get clarity of the same. I hope they will just get clear on the same. Sonia, next questions. Okay, I hope Chetan is right here with the. Yeah, sure, definitely. Next question is from Ravindra Singh, and he's asking, is cut-off salary process, we process full present month salary, but after we came to know he was absent after cut-off date, that is on 20, and his last date of exit is 31st. Then how we will treat this type of case, because we will get negative salary and also PF and ESI also comes in negative under FNF process. Okay. So whenever just you are doing the last month's salary, in that case, the system is calculating the actual attendance. So whatever the attendance which you have just captured over there, so it will process accordingly. So before doing the FNF, you need to get their regular their attendance should be clear at your end. So whenever just you'll get salary FNF process, you will not get any hurdles. Okay, I think Ravindra is clear with the answer. So this was the last question of this session. And before closing the session, I would like to announce the winners of last webinar. So the winners are Miss Divyangi Pandya from Promtech Info, Miss Hina Revani from Virologist, and Miss Ruma Sen Gupta from Deepak Nitrate. So the three are the winner of last webinar session, which we have conducted on PF contribution with the reduced rate from 12% to 10%. So I have already disclosed the winners. Now today we also have the event, lucky draw event organized. So post this session, everybody will receive a questionnaire survey or receive a poll as soon as this session ends. So everybody is requested to please answer that question, please answer that poll, and post that will have the two lucky winners, and they will receive a gift coupon which will be fully sponsored by Orange Technology. So I would like to thank all the panelists, Mr. Umang, Mr. Sajid, and Mr. Chintan, for sharing such a wonderful session with all the attendees. Further to this, I request all the attendees to please share your concerns and feedback on feedback@orangewebtech.com. If you require any support, please mail us to support@orangewebtech.com. Our support representative will call you for to solve your queries. And once again, thanks to all the attendees for joining this session. Please be at home and be safe. Thank you so much for attending this session. Thank you so much. Thank you, everyone.